Okay, so we have to discuss now in lecture 3 about reasoning. So first we'll start with reasoning में 2012 में क्या क्या आया था. So I've listed those topics. This is the analysis made from online exam 2012, which was based on memory and students review, which we have collected in 2012. So the input output thing came for 4 marks only, and it was basically for 14 elements. So straightforward, the strategy was to go for it in last attempt, last round, because 14 element का it was very complicated type of input output, and same time it was only for 4 marks. और पहले ही जानबूझ के दे दिया था ताकि you waste your 10 to 12 odd minutes in that and you spoil the completely easy reasoning section. Rest, then it was seating arrangement, 8 member facing inside with blood relation for 7 marks. सो इनपुट के बाद ये और एक डिफ़िकल्ट टाइप का सेटिंग अरेंजमेंट डाल दिया, तो इसके बाद है ना पूरे धज्जे उड़ गए, लोगों ने रीजनिंग सेक्शन स्किप ही कर दिया होगा ऐसे सोच के कि इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. पहले दो में ही पूरा हवा गुल हो गई, तो एक अलग टाइप का मेंटालिटी हो जाता है. सो दे हैव स्किप्ड रीजनिंग पार्ट इन फर्स्ट गो. जो ईजी लगा वही कर लिया लोगों ने. बट इसके बाद का जो टॉपिक साइट वॉज वेरी इजी, लाइक सिलॉजिज्म वॉज वेरी इजी एंड लाइक 7 मार्क्स का इजी था. रैंकिंग टेस्ट वॉज लाइक केक वॉक 1 मिनट का 1 मिनट में 3 मार्क्स थे. देन सिटिंग अरेंजमेंट का पजल 2 rows विथ 8 मेंबर्स साउथ नॉर्थ फॉर 8 मार्क्स, दैट वॉज वेरी इजी, 3 मिनट्स में 8 मार्क्स. Then data sufficiency was also very easy for 5 marks. Then critical reasoning was there, which was one of the difficult topics. So इसमें कोर्स ऑफ एक्शन वगैरह कुछ नहीं पूछा था, बट नॉर्मल वीकन स्ट्रेंथनिंग वगैरह पूछा था, और वीकनिंग स्ट्रेंथनिंग पूछा था 2-3 मार्क के लिए. एंड वन वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हाट इज़ एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ दैट, ऐसा पहचानना. एंड वन वाज फॉर इन्फ्रेंस एंड वन वाज फ्रॉम कंक्लूजन. And visual reasoning, this was the thing which was first time ever seen in online examination, that was visual reasoning. Visual reasoning में बहुत सारे types होते हैं. It may be like series, there may be analogy का हो सकता है visual reasoning, फिर wrong pattern पहचानने का हो सकता है. Then you have mirror image, water image, paper fold, paper cut. Paper fold and paper cut is not that feasible to ask in online examination. It is very easy to ask in staff selection or some kind of paper based examination. But series, analogy and wrong pattern पहचानने का जो चीज़ है, that is which is commonly seen in all MBA entrance also, like Maharashtra MBA, CET and all other exams which are conducted by IBPS. So visual reasoning is the only new thing, and it was only observed in 2012. आप उसके बाद कभी देखा नहीं गया कि ये कोई एग्ज़ाम में आया है. So people are ignorant about this section, whether they are preparing or not for this section I don't know, but my students, so those who are preparing for IBPS mains, remember you have to focus on this topic now, जो हमने बहुत पहले किया था. और बट तुमने मे भी इसको ज़्यादा रिवाइज नहीं किया क्योंकि दूसरे कुछ एग्ज़ाम्स में ये आता नहीं है. सो नाउ इट्स टाइम टू रिकैप इट. द सीरीज पार्ट, वो शॉर्टकट 1 2 5 6 एंड ऑल दोज थिंग्स, नंबरिंग एक्सेट्रा थिंग्स. सो रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स, रिकैप इट and do it ASAP, because this may test you for 5 to 7 marks in your 2015 exam, as it has been not seen in last 2 papers. So वो बोलते ना पुराने को नया रिमिक्स करके पूछ सकते हैं. So they may ask you, so get set for that visual reasoning part. Then in 2013 we have observed the same pattern, sitting arrangement. देन सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का पज़ल आया स्टार्टिंग में 5 मार्क का, HR क्राइटेरिया 5 मार्क का, सिलॉजिज्म 5 मार्क, पज़ल. ओवरऑल ये जो पेपर था 2013 का रीजनिंग का जो पेपर था, एक्सेप्ट क्रिटिकल रीजनिंग, जो भी 40 मार्क का रीजनिंग था, इट वाज लाइक आउट ऑफ आउट, पूरा स्कोर करने लायक रीजनिंग था. इट वाज वेरी इजी. 40 में 40 करना तो बहुत ही आसान था. और जो लास्ट का 10 मार्क्स का क्रिटिकल रीजनिंग था, इट वाज डिफ़िकल्ट. दिस 10 marks was difficult, not difficult in sense of like कि critical reasoning difficult होता है इसके लिए difficult है, but
जो पैसेजेस पूछे थे इट वाज वेरी लेंदी एंड इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. सो द बेस्ट स्ट्रैटेजी इन 2013 वाज टू स्किप दिस क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट. और उन्होंने ये सब बीच बीच में पूछा था, ऐसा सेपरेटली 10 मार्क का क्रिटिकल रीजनिंग नहीं पूछा था. ऐसे लाइक सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, फिर 2 मार्क का क्रिटिकल रीजनिंग पूछ लिया बीच में, फिर एच आर क्राइटेरिया, फिर 1 मार्क का क्रिटिकल. सो इट वाज लाइक पेन फॉर एवरीवन टू कि बहुत सारा तो नहीं आया क्रिटिकल रीजनिंग, आधा पेपर तो नहीं आया क्रिटिकल रीजनिंग, हर टॉपिक के बाद आ रहा है. So it was like to bit confuse you. But those who have skipped that critical reasoning in first round and solved complete reasoning in one go, except critical reasoning, they have made exceptionally well in 2013. Okay. So it was overall very easy kind of paper, and it was very like बहुत स्कोरिंग था, 40 प्लस लाने का बहुत चांसेस था इस पेपर में. सो डोंट वरी अबाउट दिस 2013 रीजनिंग. 2014 में फिर क्या देखा गया? 2014 में उन्होंने चेंजेस ये किया कि पीपल आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर मिसलेनियस टॉपिक. सो उन्होंने एक डायरेक्शन टॉपिक एडिशनल डाल दिया था. फिर कोडेड इनक्वालिटी उन्होंने 2013 में इंट्रोड्यूस किया, 2012 में नहीं था. 2014 में अगेन इट केम, बट इट केम ऑफ अपना एक्सरसाइज फोर्थ का जो कोडेड इनक्वालिटी है, थोड़ा हाई लेवल का कोडेड इनक्वालिटी, दे इंट्रोड्यूस दैट टाइप ऑफ कोडेड इनक्वालिटी. 2013 में इट वाज वेरी बेसिक टाइप ऑफ कोडेड इनक्वालिटी, जो लेस दैन ग्रेटर दैन एकदम नॉर्मली सॉल्व होता है वो था. बट इन 2014 इट वाज लाइक एक्सरसाइज फोर्थ में जो अपने बुक में है वो ऐसा. It was very like complicated kind of coded inequality, but it is easy to solve. Like 2 minutes में you can easily score 6 marks, not that difficult. Okay. एंड सिलॉजिज्म में भी थोड़ा सा मॉडर्न अक्खा का अक्खा मॉडल सिलॉजिज्म पूछ लिया, लाइक पूरा पॉसिबिलिटी, एटलीस्ट, सम नॉट एंड ऑल दोज थिंग्स, काइंड ऑफ मिक्सचर न्यू थिंग्स. मॉडर्न वाला सिलॉजिज्म आ गया 6 मार्क के लिए. डेटा सफिशिएंसी स्टार्टिंग में पूछ लिया था, थोड़ा कंज्यूमिंग था, 3 स्टेटमेंट वाला डेटा सफिशिएंसी पूछ लिया था, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था. स्टार्ट में जानबूझ के पूछ लिया था वो लोगों ने. सो स्टार्टिंग में डेटा सफिशिएंसी छोड़ देना चाहिए था और क्रिटिकल रीजनिंग छोड़ देना चाहिए था. बाकी सब पूरा पेपर अटेम्प्ट करते एंड देन यू वुड हैव अटेम्प्टेड रेस्ट रीजनिंग इन सेकंड राउंड, तो इट वुड बी द इजी थिंग फॉर यू टू क्रैक 35 और 38 ऑड मार्क्स इन रीजनिंग इन 2014. सो एवरेजली 35 प्लस ही चल रहा है. 2012, 2013, 2014 में इट वाज वेरी इजी टू स्कोर 35 प्लस इन ऑल दोज एग्जाम्स. तो 2015 में भी ना यू इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर 35 प्लस, बट 40 के आगे जाना विल बी द डिफ़िकल्ट थिंग. वो कहीं ना कहीं पे तो क्रिटिकल रीजनिंग या फिर कोई ना कोई तो एडिशनल टॉपिक डाल के थोड़ा सा तुमको ये कर देते, कंफ्यूज कर देते. सो now I think people are very ignorant about visual reasoning topics, so they may ask you for 5 or 10 marks also, it depends on them. So बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस टॉपिक. इसको ऑप्शन में मत डालो, अगर ये आ गया तो 5 मार्क ईजी मार्क्स चले जाएंगे. सो प्रिपेयर फॉर दिस विजुअल रीजनिंग. रेस्ट तो इनपुट आउटपुट कोडेड, इनपुट आउटपुट का दोनों टाइप करो, वन विच इज़ एंड सो ऑन एंड वन विच इज़ नॉर्मल टाइप. कोडेड इनइक्वालिटी इज सेम, एक्सरसाइज 4 एंड एक्सरसाइज 5. एच आर क्राइटेरिया और डेटा सफिशिएंसी, ये दोनों में से एक ही पूछते हैं एग्जाम में, दोनों एक साथ नहीं पूछते. सो एच आर क्राइटेरिया इज ऑल्सो एन इग्नोरेंट सेक्शन. सो please make sure that you solve at least 5 to 7 questions of HR criteria. मिसलेनियस जो चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 11 तक है वो मिसलेनियस. देन क्रिटिकल रीजनिंग, देन यू हैव पजल्स, जो नॉर्मली हमने जो पजल्स किए 19 to 20 ऑड पजल्स, एंड देन यू हैव विजुअल रीजनिंग. सो 2015 का एक्सपेक्टेड पैटर्न ये है. एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आई विल ईदर पेस्ट इट ऑन फेसबुक और आई विल ईदर गिव इट यू इन हार्ड कॉपी इन क्लास. बेसिकली मैं इनपुट आउटपुट के 4 या 5 सेट दूंगा तुमको, जो मोस्टली ऑब्जर्व सेट है, बट यू हैव टू डू सॉल्व इनपुट आउटपुट के लॉजिक्स. अदर टाइप के लॉजिक्स होते हैं, हार्डली 18 से 20 टाइप के लॉजिक है जो अपने बुक में सब अवेलेबल है. देन कोडेड इनइक्वालिटी, वो 2 एक्सरसाइज में का एक गिन के आपको 5-5-10 क्वेश्चन दूंगा. देन एच आर क्राइटेरिया 3 to 4 क्वेश्चंस ऑफ 10-10 ईच. और मिसलेनियस में लाइक ईच चैप्टर 4 to 5 टाइप्स, मतलब ईच क्वेश्चन ऑफ ईच टाइप. सो ऐसे गिन के एक 110 क्वेश्चन. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 110 और 120 ऑड क्वेश्चन फॉर
from that sheet, then you are done with IBPS mains like topic. Okay, and this is our lecture 3 actually. Okay, sorry for my mistake. And make sure you score 35 plus, at least 35 plus in reasoning, because this is going to be the most scoring section. क्रिटिकल रीजनिंग अगर आपको नहीं जमता है, इवन दो यू आर प्रैक्टिसिंग इट एट लाइक बहुत अच्छे से भी पढ़ रहे हो, फिर भी नहीं जम रहा है, फिर भी रॉन्ग हो रहा है कंटिन्यूसली, तो इग्नोर दैट सेक्शन, इग्नोर दैट क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन, रेस्ट ऑफ दैट यू कैन मेक आउट। ठीक है, रेस्ट में से तुमने अगर एक हाथ पजल भी गलत हो रहा है या एग्जाम में बहुत टाइम कंज्यूम करा और तुमने स्किप करा है, तो भी यू कैन स्कोर अप टू 35 मार्क्स। ओके, so thank you for listening this, and we'll continue with lecture 4 about English, and so on about the questions and all, etc., etc., general awareness, banking awareness, etc. So keep watching. Thank you.